میں ڈرتے ڈرتے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ دل میں پٹائی کی خوف سے بہت بڑی سہما ہوا تھا۔ آج پہلی بار میں اسکول سے غیر حاضر ہوا تھا۔ مجھے بچپن ہی سے پڑھائی کا شوق نہیں تھا۔ ابا کی پٹائی کے ڈر سے اسکول جاتا تھا۔ میں جس دن بھی پڑھنے نہیں جاتا تھا، شام گئے ابا گھر آ جاتے اور انہیں کسی نہ کسی طرح سے خبر ہو جاتی کہ میں اسکول سے چھٹی کر لی ہے۔ پھر میری خیر نہیں ہوتی تھی۔ وہ جوتوں اور چپلوں سے میری خوب خاطر مدارت کرتے۔ اس پٹائی کا یہ اثر ہوتا تھا کہ میں دوسرے دن خاموشی سے صبح سویرے تیار ہو کر اسکول چلا جاتا۔ میرے ابا نصیر الدین سخت دل نہیں تھے، اندر سے وہ نرم دل رکھنے والے انسان تھے۔ وہ مجھ پر سختی اس لیے کرتے تھے کہ وہ خود غربت کے سبب تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے۔ وہ بھی 10 برس کے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور گھر میں بڑے ہونے کے سبب گھر کی ساری ذمہ داری کا بوجھ ان کے سر پر آ گیا تھا۔ اس لیے ابا نے تعلیم کو خیر آباد کہہ کر محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ محنت کرتے ہوئے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں۔ اپنے ایک دوست ظہیر کے کہنے پر ابا نے ایک دکان کرائے پر حاصل کی اور اس میں سبزی کا کام شروع کر دیا۔ سبزی کا کام ابا کو خوب راس آیا۔ چند سالوں میں ہی انہوں نے ذاتی دکان خرید لی۔ ابا کا اخلاق اچھا ہونے کے سبب ان کی دکان خوب چلتی تھی۔ انہیں پیسہ جمع کرنے کا شوق نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خوب دولت سے نوازا تھا۔ اس کاروبار سے ان کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ پھر ان کی دونوں بہنوں سریا اور بلقیس کی شادیاں بھی ہوئی۔ ابا کو صرف اسی بات کی کسک تھی کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اس لیے وہ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ اس کے برعکس مجھے پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا۔ میرا بس چلتا تو اسکول کی صورت بھی نہیں دیکھتا۔ ابا کی پٹائی مجھے اسکول جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میں تعلیمی مدارج طے کرتا ہوا 8ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنا قد کاٹ بھی خوب نکال لیا تھا۔ گاؤں میں میری جماعت میں کئی لڑکے ایسے بھی تھے جو صبح کے وقت تیار ہو کر اسکول کے لیے ضرور نکلتے تھے، لیکن اسکول جانے کی بجائے ادھر ادھر وقت گزار کر چھٹی کے وقت گھر پہنچ جاتے تھے۔ ان کے دیکھا دیکھی میں نے بھی اسکول سے چھٹی کر لی تھی۔ میں مختلف کھیتوں کی سیر کو نکل گیا تھا۔ صبح کے وقت ہرے بھرے کھیت بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ شام تک یوں ہی کھیتوں میں گھومتا رہوں، لیکن اس طرح میرے گھر وقت پر نہ پہنچنے سے میری چوری پکڑی جاتی تھی۔ اسی بنا پر چھٹی کا وقت ہونے پر گھر کی جانب چلا جا رہا تھا تاکہ گھر والوں کو کسی قسم کا شک نہ ہونے پائے۔ گھر پہنچ کر میں نے بستہ اپنی کمر سے اتارا کہ جیسے بہت تھک گیا ہوں۔ لگتا ہے آج میرے بیٹے نے بہت پڑھائی کی ہے، جب بھی بہت تھک گیا ہے۔ امی جان نے میرے بلائی لی۔ جی امی، ماسٹر صاحب بہت کام کراتے ہیں، انگلیاں تھک جاتی ہیں۔ کاپی میں لکھتے لکھتے میں نے اپنی انگلیوں کو دباتے ہوئے ایسے اداکاری کی کہ جیسے واقعی میں نے اسکول میں بہت لکھا ہے۔ امی جان نے میری انگلیوں کو بڑی پیار سے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر پیار کیا۔ مت گھبراؤ، محنت سے انسان بڑا آدمی بنتا ہے۔ جب تم بڑے آدمی بن جاؤ گے پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ماسٹر صاحب تمہیں اسکول میں کام کرایا کرتے تھے، وہ تمہارے حق میں اچھا تھا۔ امی جان نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ آپ تو ماسٹر صاحب کی ایسی طرفداری کرتے ہیں جیسے وہ رشتہ دار ہو، میں نے جل بھنتے ہوئے کہا۔ خیر، میں جب بھی ماسٹر صاحب کی برائی کرتا امی جان ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی تھیں۔ یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی۔ میں نے ماسٹر صاحب کی بہت تعریفیں سنی ہیں کہ وہ شاگردوں پر بڑی محنت کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے شاگرد بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، امی جان نے کہا، اور وہ خود وہیں رہ گیا، ماسٹر سے آج تک آگے نہیں بڑھ سکے۔ میں نے جل کر کہا، بیٹے ایسے نہیں کہتے، وہ تمہارے استاد ہیں، استاد کا کام بچوں کو پڑھانا ہے۔ اگر وہ کوئی اور کام کرتے تو پھر ان کی شاگردی کیسے ترقی کرتے؟ امی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ماسٹر صاحب کے ایسے شاگردوں کو بھی جانتا ہوں جو گدھا گاڑی چلا رہے ہیں۔ مجھ سے ماسٹر صاحب کی تعریفیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے میں برابر کی مخالفت میں بول رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک استاد کے سارے شاگرد ترقی کر جائیں۔ کچھ نکمے شاگرد بھی ہوتے ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے، پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دیتے، جس کا نقصان انہیں ہی ہوتا ہے، استاد کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امی، بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ میں نے موضوع بدلنے کو یہ بات کہی۔ بھوک ضرور لگی تھی مگر اتنی شدید بھی نہیں تھی کہ برداشت نہ کر سکوں۔ ہاں کیوں نہیں، آج میں نے اپنے بیٹی کی پسند کی ڈش بنائی ہے،
दाल चावल तुम्हें बहुत पसंद है ना? अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। जी, मैंने सिर्फ इतना ही कहा। अम्मी जान इंटर पास थीं, इसलिए वो इतनी अच्छी गुफ्तगू कर लेती थी और सामने वालों को बातों ही बातों में लाजवाब कर देती थी। मैं मास्टर साहब की खूब बुराइयां करना चाहता था, मगर अम्मी जान के सामने मेरी एक भी ना चल सकी थी, इसलिए मैंने भूख का जिक्र करके बात का मौजू ही तब्दील कर दिया था। रात गए अब्बा की वापसी हुई। इस वक्त मैं सेन में चारपाई पर लेटा हुआ था। अब्बा को देखकर मैं खौफजदा हो गया। मैं डर रहा था कि कहीं उन्हें मेरे स्कूल ना जाने की खबर ना हो गई हो। अगर ऐसा है तो वो मुझे मार मार कर अधमुआ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब्बा ने मुझे देखा, मैं दम साध कर ऐसा बन गया जैसे सो रहा हूँ। मुझे सोता देखकर वो कमरे के अंदर चले गए। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि शुक्र है अब्बा को मेरे स्कूल से गैर हाजिर होने की खबर नहीं, वरना वो अभी मुझे मारना शुरू कर देते। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के इरादे से तैयार होकर घर से निकला था। फिर न जाने क्यों ऐसा हुआ कि जब स्कूल कुछ फासले पर था, मेरा इरादा तब्दील हो गया और मेरा रुख खेतों की तरफ हो गया। आज मुझे अपने स्कूल के वो साथी भी मिल गए थे जो स्कूल का वक्त इधर उधर घूम कर पूरा कर लेते थे। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। नियाज़ मोहम्मद, तुम भी? नवाजिश ने मुस्कुराते हुए देखा। जब तुम तफरीह कर सकते हो तो क्या मेरा हक़ नहीं बनता कि कभी कभार तफरीह कर लूँ? मैंने जवाबन कहा। ज़रूर ज़रूर, तुम्हें तुम्हारे हक़ से कौन रोक सकता है, काशिफ ने कहा। दोस्तों की जानिब से खुश आमदीद कहने पर मैं खुश हो गया। अब हमारा रोज़ का ये मामूल बन गया था कि सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर घर से निकलते, फिर एक मखसूस मकाम पर मिलकर प्रोग्राम मुरतब करते कि आज किधर की सैर को जाना था। 15 दिन ऐसे ही गुजरे कि पता ही नहीं चला। एक शाम अब्बा घर जल्दी आ गए और आते ही मेरा पूछा। मैं उस वक़्त कमरे में था। नियाज़ कमरे में है, अम्मी जान ने बताया। नियाज़ ज़रा इधर आना, अब्बा ने मुझे आवाज़ दी। जज जी। मैं अब्बा की कड़कदार आवाज़ से सहम कर गया। मुझे देखते ही अब्बा ने अपना जूता निकाला और मेरी पिटाई शुरू कर दी। मैं अचानक इस पिटाई से बौखला गया और मेरे मुंह से सिवाय हुई आ के कुछ ना निकल रहा था। क्या हो गया है आपको? मेरे बच्चे को क्यों मार रहे हो? अम्मी ने मुझे छुड़ाने की कोशिश की। दूर हो जा, वरना तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगा। अब्बा बहुत गुस्से में थे। कुछ पता भी चले इसने क्या कर दिया जो आप इसे इतना पीट रहे हो? आवारा हो गया है तुम्हारा लाडला, स्कूल जाने की बजाय इधर उधर आवारा गर्दी करके घर चला आता है। अब्बा बोले। ये आपसे किसने कह दिया? ये तो रोज़ाना घर से तैयार होकर स्कूल जाता है। ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए स्कूल जाने को तैयार होकर घर से ज़रूर निकलता है, फिर स्कूल जाने की बजाय दूसरे आवारा लड़कों के पास चला जाता है जो इसे कहीं और ले जाते हैं। अब्बा मेरी पिटाई करते करते बुरी तरह हाँफने लगे थे। बच्चे को मारने से पहले पूछ भी लेते कि ये बात सच भी है या नहीं। अम्मी खफा होते हुए बोली। पहले मुझे मस्जिद के पेश इमाम साहब ने बताया, फिर मैंने मास्टर नज़ीर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका लाडला 15 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा। अब्बा गुस्से से फुंकारते हुए बोले। क्यों बेटे, ये अब्बू क्या कह रहे हैं? अम्मी ने मेरा कंधा पकड़ते हुए पूछा। मैं क्या कहता, मैं मुजरिम था। पेश इमाम साहब ने कई बार मुझे आवारागर्दी करते देखा था, इसलिए मेरी शिकायत लगा दी थी। पेश इमाम साहब बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए हर कोई उनकी दिल से इज़्ज़त करता था। मेरे अब्बू की तरह वो भी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। अक्सर मुलाकात होने पर मुझे नसीहतें भी करते थे। वो बड़े ही हमदर्द और शफीक इंसान थे, इसलिए मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता था। मगर इस वक्त वो मुझे बहुत ज़हर मालूम हो रहे थे। उनकी शिकायत करने पर आज अब्बू ने इस कदर पिटाई कर दी थी। अब्बू की पिटाई खाकर मेरे जिस्म का एक एक जोड़ दुख रहा था। ये क्या कहेगा, कहने को कुछ हो तो कहेगा। एक बात इसे अच्छी तरह समझा देना, इस घर में अगर रहना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, वरना इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए अब्बू घर से निकल गए। नियाज बेटे, ये तुमने क्या कर दिया? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अब्बू के चले जाने पर अम्मी मुझसे मुखातिब हुई। माँ, ये सब पेश इमाम साहब की वजह से हुआ है। वो ना मेरी शिकायत करते और ना अब्बू को ये बात पता चलती। मैंने कहा, इसमें पेश इमाम साहब का क्या कसूर है? उन्होंने तुम्हारे भले के लिए ही शिकायत की है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि क्या ये अच्छी बात है। स्कूल से वो भागते हैं जो पढ़ाई के चोर और आवारा होते हैं।
अम्मी अम्मी की हमदर्दियाँ पाकर मैं बिलक पड़ा और आंसू का समंदर आंखों से बह निकला। ना रो, अब बस चुप कर जाओ। अम्मी ने मुझे सीने से लगाया। अब्बू ने बहुत ज़ोर से पीटा है। मैंने कहा, तुम्हारे भले के लिए ही मारा है, वो तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है। मेरी पिटाई ऐसे की है कि मैं उनका बेटा नहीं, किसी दुश्मन का बेटा हूँ। इंसान के गुस्से में जज्बात कहाँ काबू रहते हैं। गुस्से में आना उनका फितरी रद्द अमल है। तुम ना ऐसी हरकत करते और ना वो पिटाई करते। अब आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, वरना तुम जानते हो अपने अब्बू के गुस्से को। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि आवारा लड़कों से दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकते। वो तुम्हारे पक्के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। अम्मी ने मेरे सर पर शफ़क़त से हाथ रखते हुए कहा। मैं मज़ीद कुछ बोलने की बजाय सिसक कर रह गया। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर फिर मैंने स्कूल जाने की बजाय आवारागर्दी की तो अम्मी की तरफ से कोई हमदर्दी की उम्मीद नहीं होगी। इस मामले में वो अब्बू का ही साथ देंगी। इसलिए मेरे हक़ में यही बेहतर था कि मैं आवारागर्दी छोड़कर स्कूल जाने लगूं। और फिर मैंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन शराफत से स्कूल चला गया। मास्टर साहब मुझे देखकर मुस्कुराए, लेकिन कहा कुछ नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें मेरी गैर हाज़िरी पर जो पिटाई करनी थी वो अब्बू पहले ही घर में कर चुके होंगे। इस वाक़े के चंद दिनों बाद मैं अपनी गली की सड़क पर बाहर निकल रहा था कि सामने से पेश इमाम साहब आ गए। हम दोनों की नज़रें एक लम्हे को मिलीं और फिर मैंने नज़रें नीची कर ली थी। मैं उनसे बचकर निकल जाना चाहता था। मुझे अपनी शिकायत लगाए जाने का बहुत शदीद दुख था कि उनकी शिकायत पर मेरी पिटाई हुई है। अगर वो अब्बू से मेरी शिकायत ना करते तो कभी भी मास्टर साहब से ना पूछते कि मैं स्कूल आ रहा हूँ या नहीं, और मैं खूब सैर व तफरीह में मशगूल रहता। मैं जैसी ही नज़रें बचाते हुए उनके पास से गुजरने लगा, वो मेरे सामने आ गए। नियाज़ बेटे, नाराज़ हो? बेशमाम साहब ने पूछा। जज जी, मैं एक लम्हे को चौंका। तुम मेरी शिकायत करने पर नाराज़ हो? देखो भाई, मैंने तुम्हारे भले को शिकायत की थी। वो मुझे गौर से देख कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहूँ। दिल में उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो मेरी शिकायत कर दी और फिर मुझे गुस्सा दिलाने को बता भी रहे हैं। मैं जब कुछ भी नहीं बोल सका तो वो खुद ही बोले, स्कूल से भागना अच्छी बात नहीं होती। जो बच्चे स्कूल से भागते हैं वो कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते। तुम्हारे अब्बू की बड़ी ख्वाहिश है कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। ऐसा जब भी हो सकता है जब तुम दिल लगा कर खूब तालीम हासिल करो। मैं उनकी बात खूब समझ रहा था। इस वक्त जो उम्र मेरी थी, इस उम्र में बच्चे अमूमन ये बात समझते हुए भी सैर व तफरीह करना चाहते हैं, जो बुज़ुर्गों की नज़र में आवारागर्दी करना है। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, बशर्ते कि मेरा दिल पढ़ाई में लग जाए। मैंने कहा, पढ़ाई में दिल ना लगे तब भी ज़बरदस्ती उसे लगाओ। ये वक्त गुजर जाने पर फिर लौट कर नहीं आएगा और तुम्हारे पास सिवाय अफसोस और हाथ मलने को कुछ बाकी ना रहेगा। वो मुझे समझाते हुए बोले। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब दूँ, इसलिए उनकी बातों का हाँ हूँ में ही जवाब देता रहा। वो मुझे समझाकर एक जानिब बढ़ गए। मेरी ये समझने वाली उम्र कहाँ थी। मुझे स्कूल से गैर हाजिर लेकर आवारागर्दी करने का शौक़ पड़ चुका था। वो किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं 10-15 दिन स्कूल बाकायदगी से जाता, लेकिन फिर आवारागर्दी शुरू कर देता। जब भी अब्बू को मेरी आवारागर्दी की खबर मिलती, वो मेरी पिटाई लगा देते। इस पिटाई का ये असर होता कि मैं फिर से स्कूल जाने लगता। जब देखता कि अब्बू मुतमईन हो गए हैं, फिर छुट्टियां करने लगता। पेश इमाम साहब जब भी मुझे मिलते, नसीहतें करते हुए पढ़ने पर और तवज्जो देने की तलकीन करते। मुझे न जाने क्यों उनकी नसीहतें पसंद नहीं आती थीं। वो जब सर राह मुझे नज़र आते तो मैं उनसे बचने की कोशिश करता, मगर वो मुझे आवाज़ देकर रोक लेते थे। वो मस्जिद के पेश इमाम होने के साथ साथ अब्बू के दोस्त भी थे, इसलिए उनका एहतराम करना ज़रूरी था। मैंने जैसे तैसे करके मैट्रिक पास कर ही लिया था। गांव में उस वक़्त इंटर में दाखिला लेने के लिए कॉलेज नहीं था। जिस बच्चे को भी इंटर करना होता उसे शहर के किसी कॉलेज में दाखिला लेना होता था। अब्बू की ख्वाहिश पर मुझे भी तालीम हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। शहर में मेरी खाला बतूल रहती थी। तय ये पाया था कि मैं उनके घर पर रहूँगा।
इत्तेफाक से शहर जाने से 2 दिन कबल मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया। जब मैं नमाज़ पढ़कर मस्जिद से बाहर आने लगा तो पेश इमाम साहब ने मुझे आवाज़ देकर बुला लिया। मैं जब उनके पास गया तो वो मुस्कुराते हुए बोले, नियाज़ मोहम्मद, सुना है कि तुम्हारा शहर की कॉलेज में दाखिला हो गया है। जी, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। देखो बेटा, शहर जाकर वहाँ की रौनक में मसरूफ़ ना हो जाना और दिल लगा कर पढ़ना। तुम्हें अपने अब्बू का नाम रोशन करना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा दिल पढ़ाई में लग जाए। कोशिश नहीं, ज़बरदस्ती दिल लगाना, जब भी तुम तालीम के मैदान में कामयाब होगे। पेश इमाम साहब ने मेरे सर पर शफ़क़त भरा हाथ फेरा। मैं क्या करूँ, मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता। ज़बरदस्ती दिल मार कर पढ़ रहा हूँ। बेइख्तियार मेरे दिल की बात ज़बान पर आ गई। ये उम्र ही ऐसी होती है, सैर सपाटे में दिल लगता है। तुम तालीम हासिल कर लो, फिर पूरी ज़िंदगी सैर सपाटे करते रहना। ठीक है, मैं सैर व तफरीह से ज़्यादा तालीम पर तवज्जो दूँगा। मैंने जान छुड़ाने को कहा। शाबाश, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। जब भी तुम खुद को किसी मुसीबत में पाओ, एक बार मुझे ज़रूर याद कर लेना। पेश इमाम साहब ने खुश होते हुए कहा। मस्जिद की सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं सोच रहा था कि पेश इमाम साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं उन्हें किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होते ही याद करूँगा और वो मिनटों में जादू के ज़रिए पहुँच जाएंगे और मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। बेइख्तियार मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। गाँव की निस्बत शहर में घूमने फिरने के लिए तफरीह मकाम बहुत ज़्यादा थे। सिनेमा घर भी उन दिनों बहुत हुआ करते थे। हर सिनेमा पर मुख्तलिफ़ अदाकारों की फ़िल्में लगी होती थीं। फ़िल्म देखने को सिनेमा घर जाना पड़ता था। टीवी की नशरियात भी शाम को चलती थीं। कॉलेज में इनाम, कामरान और शरीफ मेरे गहरे दोस्त बन चुके थे। सुबह मैं कॉलेज जाता था और शाम को मेरे दोस्त आ जाते। हम लोग घूमने फिरने निकल जाते। हफ्ते में 1-2 फिल्में हम ज़रूर देखते थे। होटल में बैठकर सिगरेट पीना हमारा मामूल बन गया था। एक शाम हम दोस्त एक सड़क से गुजर रहे थे कि एक पुरानी बुसीदे सी हवेली पर हमारी नज़र पड़ गई। देखो यार, ये हवेली अपने वक्तों की अच्छी हवेली में शुमार होती थी, इनाम ने कहा। फिर ये गैराबाद क्यों हो गई, मैंने पूछा। इस हवेली के बारे में लोगों की मुख्तलिफ़ राय हैं। कोई कहता है इस हवेली में जिन्नात का बसेरा है। कोई कहता है इस हवेली में एक खूबसूरत दुशीज़ा रहती है जिस पर एक जिन आशिक हो गया था। वो इससे शादी करके अपने देश ले जाना चाहता था, मगर घर वाले इस शादी पर तैयार ना हुए। उस जिन को गुस्सा आ गया और उसने उसमें मुकीम ख़ानदान को तहस नहस कर दिया। इस दौर में ये सब फरसूदा बातें हैं। लोग ऐसे ही बातें फैला देते हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं होती। मैंने कहा, हम भी तुम्हारी बात पर मुत्तफ़िक हैं, मगर जिस शख्स ने भी इस रात से पर्दा उठाने की गरज से हवेली में रात बसर की, वो दूसरे दिन मुर्दा हालत में मिला है, कामरान ने कहा। खौफ अच्छे सेहतमंद लोगों के हौसले पस्त कर देता है। हो सकता है कि उनके ज़हनों पर पहले ही से खौफ हो और इसी खौफ के नतीजे में उनका इंतकाल हो गया हो, मैंने कहा। क्या ख्याल है, क्यों न हम इस रात से पर्दा चाक कर दें, इनाम ने कहा। वो कैसे, कामरान ने पूछा। वो ऐसे कि अकेला आदमी वाकई रात की तारीकी में इस पुरअसरार हवेली में खौफज़दा हो सकता है, लेकिन हम चारों हवेली में होंगे तो फिर खौफ ना होने के बराबर होगा और हम रात हवेली में रहकर इसकी पुरअसरारियत से वाकिफ़ हो जाएंगे, शरीफ ने कहा। बात तुम्हारी माकूल है, एक की निस्बत 4 इस आसेब पर भारी पड़ेंगे, मैंने ज़ोरदार कहका लगाया। मेरी बात पर वो भी मुस्कुरा दिए। फिर हमने तय पाया कि पहले पूरा दिन इसमें गुजारेंगे, फिर अमन व सुकून रहने पर पूरी रात गुजारेंगे। इतवार को हमारी छुट्टी थी, इसलिए हम इतवार की सुबह ही नाश्ता करके वहाँ पहुँच गए। हवेली अंदर से बहुत ही खस्ता हाल हो रही थी। दीवारों पर प्लस्तर उधड़ चुका था। कमरों की छतें ऐसी हो रही थी कि अब गिरें। दिन की रोशनी में हमने हवेली को पूरी हवेली को अच्छी तरह से देख लिया था। वहाँ कुछ भी नहीं था। बरसों से सफाई ना होने से मिट्टी गर्दो गुबार मौजूद था। कमरे में जगह जगह जाले लटके थे। कहीं काले रंग की बिल्लियाँ भी वहाँ नजर आईं। वो हमें देखकर इधर उधर छुप गईं। हमें पूरा दिन हवेली में गुजारना था, इसलिए सेन की सफाई करके उसमें चादर बिछाई और उस पर बैठ गए।
दोपहर के खाने के तौर पर हम खाने पीने की अशिया भी लेकर आए थे। दिन भर हमारा इस हवेली में गपशप करते वक्त गुजरा। हम वक्फे वक्फे से हवेली के मुख्तलिफ़ कमरों में भी जाते रहे। शाम हो गई लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई भी नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश ना आया। जब हम हवेली से बाहर आए, हमारा दिल फ़ख्र से फूला हुआ था और हम समझ रहे थे कि हमने कोई बड़ा मार्का सरअंजाम कर दिया है। एक हफ़्ता के बाद इकट्ठी 3 छुट्टियां आ रही थीं। इससे अच्छा मौका हमारे हाथ फिर नहीं लग सकता था। इसलिए हम दोस्तों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया कि मैं अपनी खाला को गांव जाने का बहाना बनाकर इस हवेली में आ जाऊंगा। मेरे दोस्त भी अपने अपने घर में यही बताएंगे कि वो गांव की सैर करने के लिए मेरे साथ गांव जा रहे हैं और हम ये 3 दिन और 3 रातें इस हवेली में गुजारेंगे और इस पुरस्कार को तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इस हवेली के बारे में जो बातें फैलाई गई हैं इनमें कितनी सदाकत है।